Assalamu alaikum students. How are you? Hope so. You all are fine. Today's our chapter is multimedia presentation. Chapter number 9, multimedia presentation. We have seen we can present information in the form of text and numbers. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाउ कैन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, हाउ कैन वी मेक अ सैलरी शीट. सो इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. वी कैन आल्सो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्म. हम अपनी प्रेजेंटेशन को जब भी शो करते हैं विजुअल फॉर्म में, दिस मेक्स द इंफॉर्मेशन इजियर टू अंडरस्टैंड. इससे हमारी प्रेजेंटेशन क्या होती है और आपको अंडरस्टैंड करना क्या होता है, इजी हो जाता है. अ प्रेजेंटेशन इज एन एक्टिविटी इन विच इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑडियंस टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न multimedia system. What are the areas of use multimedia presentation? MS PowerPoint. MS stand for Microsoft PowerPoint. What is slide? What is placeholder? What is notes? What is adding information? How can we add information in the slide? How can we change the background of the slides? How can we show the presentation view? Animation effects. How can we change our document? Different effects. Slide transition. जिससे हमारी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन क्या होगी, अट्रैक्टिव लगेगी. प्रेजेंटेशन स्लाइड शो. So in this chapter we can learn different things. How can our document look like a wonderful. First our topic is what is presentation? What is multimedia presentation? When your teacher use her voice, like जैसे मैं अपनी वॉइस को यूज कर रही हूँ, the board जो आपके सामने बोर्ड शो हो रहा है, and the charts जो आपके सामने like charts डिफरेंट यूज करते हैं, and topic जो आपके सामने टॉपिक एक्सप्लेन है. मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन is given it is given a presentation. तो हम इस पूरी बात को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन. A presentation that use written data, pictures and sound and explain idea of multimedia presentation. ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें हम साउंड, वीडियो, पिक्चर्स इन सब को यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, that is called multimedia presentation. What is multimedia means? Multimedia means multiple ways of communication. How can we use multiple way of communication? With the help of pictures, with the help of audios, with the help of videos. We can share our data with the help of multiple files. Multimedia can make learning more interesting. So जब आप किसी भी डाटा को यूज करते हैं ऑडियो में, वीडियो में, पिक्चर में, so it is very interesting. A multimedia presentation use slides. जैसे आपके सामने ये different slides यूज हो रही हैं, आप इन slides के जरिए अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, वंडरफुल बना सकते हैं और ये क्या बनेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको. A slide is a rectangular area in which information can be displayed. Slide एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, डिस्प्ले होती है. In a multimedia presentation, each slide must contain information about one idea. हर स्लाइड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है एक ही आइडिया के ऊपर. अब प्रेजेंटेशन माइट कंटेन सेवरल स्लाइड्स. आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं जिसके अंदर आप एक आइडिया को डिफरेंट स्लाइड्स के जरिए शेयर कर सकते हैं. What is slideshow? A slideshow is a presentation which one slide is play long enough for view and understood by the audience. जैसे आप एक स्लाइड को शो कर रहे हो ऑडियंस के जरिए, आप अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो with the help of audio, with the help of video, with the help of picture. This next slide follow until all slide have been viewed. सारी अगर आप एक स्लाइड को ओपन कर रहे हैं तो आपने जितनी स्लाइड्स बनाई हुई हैं तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप व्यू कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया सिस्टम. व्हाट इज मल्टीमीडिया सिस्टम? A computer capable of presenting information is called multimedia system. A multimedia system is essentially consists of several items of hardware. जैसे आपकी बुक में कुछ गिवन्स है हार्डवेयर. A CD-ROM drive is used to play CDs. CD-ROM जो सा है आपका, जो आपकी CD को क्या करते हैं, ड्राइव को यूज करते हैं CDs के लिए. A sound card and speaker are used to produce sound.
A color monitor is used to display videos. अगर आपके पास कलरफुल मॉनिटर है, ठीक है, या एलसीडी है, तो आप उसके अंदर कलरफुल एनवायरनमेंट में रह के आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं. माइक्रोफोन्स एंड हेडफोन्स, आप सब लोग अभी भी यूज कर रहे हैं. हेडफोन्स आर यूज टू रिकॉर्ड एंड लिसन द साउंड. जैसे भी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन एंड हैंड फ्री या हेडफोन्स. Some popular media packages are used by the students. Multimedia encyclopedias contain text with pictures and sounds. जैसे आपके स्कूल वाले आपको रिकॉर्डिंग YouTube पे भेजते हैं वीडियोस, जो मल्टीमीडिया है, जिसमें कलरफुल एनवायरनमेंट होती है, पिक्चर्स होती हैं, साउंड होती है, वीडियो आपको नजर आ रही होती है. आप इसके, ये भी एक क्या है, इंसाइक्लोपीडिया है, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए. मल्टीमीडिया एटलस प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. आप इंटरनेट के जरिए क्या कहते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन को सर्च आउट कर सकते हैं पूरे कंट्री के अंदर के. मल्टीमीडिया मेक इट इजियर टू कंसिस्टिंग एक्साइटिंग लर्न वेरियस थिंग्स विद इन मिनट्स. इट इज पॉसिबल टू इंफॉर्मेशन ऑन द वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक बाय यूजिंग द एजुकेशनल सीडीज ऑन योर कंप्यूटर. आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सर्च आउट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, और अगर आपको इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो यू कैन बाय अ सीडी and you can explore different topics. Such programs are interactive. This means that they allow the user to interact with the computer. यानी ये सारे सॉफ्टवेयर्स या डिफरेंट थिंग्स रहती हैं, ये हमें अलाउ करती हैं तो हम इंटरेक्ट कर सकें किसके साथ, कंप्यूटर के साथ. The user type of questions and the computer provide the answer. हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर, प्रिंटर, etc. Second our topic is areas of use. Multimedia presentation softwares, वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे क्या है यूज होता है. लाइक प्लेइंग गेम्स, हम लोग प्ले करते हैं गेम्स को. प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक आप लोग घर में सुनते भी हैं, यूज करते हैं उसको. वॉचिंग फिल्म्स, आप मूवी वॉच करते हैं. एडवर्टाइजिंग, जैसे आपके स्कूल वाले कुछ भी नया, आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, कंप्यूटर कोर्स या कुछ भी नया करते हैं, जूम क्लासेस को, इसको एडवर्टाइज करते हैं थ्रू सोशल नेटवर्क या थ्रू ऐप डिफरेंट, तो आप इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं. प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, different fields like fashion designing, cooking, music, art and artistically use multimedia to train the student. जिससे आपको हेल्प होती है कि आप डिफरेंट चीज़ों को लाइक कर सकते हैं और उसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Next our topic is what is MS PowerPoint. MS stand for Microsoft PowerPoint is a presentation software. It is an application software. लास्ट आपने जो टॉपिक अंडरस्टैंड किए थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दे आर आल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दैट टाइम यू कैन यूज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, सो इट इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that enable the user to create presentation using a computer. आप कंप्यूटर के थ्रू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. Using a computer make it easy to include text, tables, charts, photographs, sounds, animation, transactions in the presentation. This makes the presentation attractive and more informative. जब आप एक टॉपिक के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे होंगे, उसके टॉपिक के बारे में, उसकी पिक्चर्स के बारे में, उसके साउंड पे, उसकी वीडियोस पे आप कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे तो वो टॉपिक आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा और इंफॉर्मेटिव भी होगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्लाइड, प्लेस होल्डर एंड नोट्स. सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, व्हाट इज स्लाइड, व्हाट इज प्लेस होल्डर एंड व्हाट इज नोट्स. अ पावर पॉइंट स्लाइड अपीयर इन द सेंटर ऑफ द विंडो. ठीक है, पावर पॉइंट क्या है, जब भी हमारे सामने डिस्प्ले होती है स्क्रीन, ठीक है, लाइक आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, तो एक क्या है हमारे पास, स्लाइड है. ठीक है, जिसके बारे में हम, उसके बाद प्लेस होल्डर, जो इसके अंदर टाइटल और सब टाइटल गिवन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर. टाइटल और सब टाइटल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर. You can use the notes area below the slide to create notes to yourself. You can refer these notes while making your presentations. Microsoft PowerPoint enable the user to slides are required. जो आपके सामने स्लाइड क्या है, रिक्वायर्ड है, आप उसको डन करते हो. So it is also provide various templates to choose from. आप कंप्यूटर के अंदर कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइल को, अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. A template is a model slide that can be text and background and formatted in the specific way. आपने टेक्स्ट को, अपनी फाइल्स को डिफरेंट वे में फॉर्मेट कर सकते हैं, लाइक एडिट, क्रिएट, फॉर्मेटिंग एंड डिफरेंट स्टाइल. यू कैन चेंज द टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड स्टाइल्स. Text, pictures and charts can be inserted of the slide and the specific placeholders. आपके सामने ये जो placeholders अवेलेबल हैं, इसके अंदर आप टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं, पिक्चर्स भी, क्लिप आर्ट भी, वीडियोस भी, ये सब कुछ आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं.
द अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स ऑन द वन स्लाइड इज कॉल्ड लेआउट। जो आपकी एक अरेंजमेंट होती है स्लाइड्स के अंदर जो आपके सामने अवेलेबल है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड लेआउट। ये इसका लेआउट है जिसके अंदर हम लोग स्टाइल्स को क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में कुछ गिवन है एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये स्लाइड गिवन है। इस पूरे ऑप्शन को जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो आपके सामने ये जो ऑप्शन है इसको हम क्या कहेंगे, स्लाइड्स। ये डिफरेंट टाइटल और सब टाइटल, इनको हम क्या कहेंगे, प्लेस होल्डर। और नोट्स क्या है, अगर आपने एंड पे कुछ भी नोट देना है तो इससे आपको हेल्प मिलती है नोट्स मेकिंग में, तो आप इसको कहेंगे नोट्स एरिया। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। हाउ कैन वी मेक अ न्यू प्रेजेंटेशन? गो टू द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट द न्यू। ये सारे जो पॉइंट्स हैं क्रिएटिंग अ न्यू पॉइंट्स में, आप इन पॉइंट्स को लर्न करके जब आप ओपन करेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को, इस पॉइंट के जरिए आपके सामने जो स्लाइड ओपन होगी, इस स्लाइड को हम लोग इन स्टेप्स के जरिए ये स्लाइड क्या होगी, आपकी ओपन हो जाएगी। तो आप इजीली इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। Adding information on the title slide, follow these steps. Click add title, placeholder and type the title of your presentation. Click add subtitle, placeholder and type in the subtitle. यानी एक subtitle क्या होता है, एक heading है, उसके जो different points हैं हम उसको उसमें explain कर सकते हैं subtitle में, ठीक है। To add a new slide, अगर आपने कोई new slide add करनी है और shortcut की आपने यूज करनी है, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+M यूज करेंगे new slide के लिए। उसके बाद है चेंजिंग द बैकग्राउंड। आप किस तरह बैकग्राउंड को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लाइक आपके सामने ये स्लाइड गिवन है, आपने इसका जो बैकग्राउंड है आपने उसको चेंज करना है, तो आप चेंजिंग बैकग्राउंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। अ बैकग्राउंड कैन ऐड अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ द स्लाइड। To add a background, follow these steps जो आपकी बुक में given है, then you can follow these steps, then you can be able to changing the background. Next है presentations view. You can view your presentation in different ways. आप अपनी presentation को different ways में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। The view button appear in the status bar. Status bar पे आपके पास available होगा। You can use the view button to move between normal views, slide views, reading views, slide sorter view. ठीक है, आप इन स्लाइड्स के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास प्रेजेंटेशन क्या है। लाइक आपके सामने ये एग्जांपल है, ठीक है, हाउ कैन यू व्यू द प्रेजेंटेशन। आपके सामने ये स्लाइड अवेलेबल है और इसके लास्ट पे बटन्स गिवन अवेलेबल है आपके पास। इसमें है रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन स्लाइड व्यू को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी स्लाइड क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। और आप इस तरह आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे कि आपने एक स्लाइड का बैकग्राउंड किस तरह चेंज किया है, आपने उसको इफेक्ट्स क्या दिया है, आपने उसका स्टाइल क्या चेंजिंग किया है, जिससे आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा और इंफॉर्मेटिव लगेगा। नॉर्मल व्यू, व्हाट इज नॉर्मल व्यू? This view allow you to focus on the slide C of the whole slides. Slide sorter view, use thumbnails of all the slides. आप सारी स्लाइड्स को देख रहे हैं। इन स्लाइड सॉर्टर व्यू यू कैन इजीली ऐड, डिलीट और अरेंज योर स्लाइड्स। आप अपनी स्लाइड्स को डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रीअरेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है स्लाइड शो व्यू। जब आपने ऑल स्लाइड्स को बना लिया है 1 2 3 4 से 5 एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही आइडिया के ऊपर क्रिएट कर लिया आपने फाइल, देन यू कैन व्यू योर ऑल स्लाइड, दे विल लुक इन योर फाइनल प्रेजेंटेशन। आप उसको देख सकते हो कि आपने जो फाइल क्रिएट किया है वो किस तरह क्रिएट किया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है एनिमेशंस इफेक्ट्स। What is effects? Animations control how objects move around your slides. यानी कि जो भी आपने टाइटल दिया है, लाइक हम यहाँ पे क्लिक टू द एड टाइटल गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कंप्यूटर। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, तो एनिमेशन इफेक्ट्स के ऑप्शन को यूज करेंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है उसके अंदर डिफरेंट क्या हो जाएंगे, इफेक्ट्स शो होंगे, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा। PowerPoint provides 4 types of animations to control movement of object of the slides. आपके बुक में अवेलेबल है, तो स्क्रीन भी आपके सामने अवेलेबल है। आप उसके सामने यूज कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स को। जैसे आपके सामने स्टार्स शो हो रहे हैं और डिफरेंट सिंबल्स भी शो होते हैं, आप उन सिंबल्स को यूज करके अपनी स्लाइड्स को इफेक्ट्स दे सकते हैं।
Next topic is slide transition. Slide transitions allow you to decide how slide will follow each other during presentation. To set a transition, follow these steps. आप अपनी slide को transict कर सकते हैं different steps में, यानी आप उसके अंदर animations लगा सकते हैं, effects लगा सकते हैं, color change कर सकते हैं, उसके font को change कर सकते हैं. ये सारी चीजें आपको slide transition में available होंगी. नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग द स्लाइड व्यू. जैसे आपकी बुक में अवेलेबल है प्रेजेंटिंग, हाउ कैन आवर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट इन द स्लाइड व्यू. जैसे आपके सामने एक ये स्लाइड व्यू शो हो रही है और सेकंड आपके सामने ये, कि आपने इस इफेक्ट्स को यूज करके नेक्स्ट में आपने चेंजिंग की है, तो आपने किस तरह ट्रांजेक्ट कर रहे हो अपनी स्लाइड को, और ये आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है. अ स्लाइड शो ऑफर्स सेवरल ऑप्शंस like beginning start of the slideshow of the first slide, current slide start from the current slide, and to move the next slide manually any other of the following. तो आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके अपनी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर यू कैन लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन मीडिया. व्हाट इज मल्टीमीडिया, व्हाट इज मल्टीमीडिया सिस्टम, व्हाट आर द एरियाज ऑफ यूज, how can we change the background, change the font size, change the color of the slides. What is MS PowerPoint? MS PowerPoint क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है that is used for different presentation views. Slides क्या होती हैं? What are placeholders? Titles and subtitles are called placeholders. And notes, you can manage your document with the help of notes. What is how can we adding information? You can choose the one idea of information and you can perform different slides of the document. Next, you can change the background. How can we change the background of the different slides? आप इन slides के जरिए अपने document को क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं. Presentation view, there are different types of views: normal view, reading view, slide sorter view. And next है animation effects. How can you change the text effects of the document? Like I will give you an example of computer. Then we change the effects of computer. So in this option we can change the text effects and styles. Slide transition. You can change your slides in different styles. If you can use different slides, one or two, so then you can choose the slide transition. प्रेजेंटेशन स्लाइड शो, जब आप पूरी एक फाइनल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं तो आप इस फाइनल प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी स्लाइड को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. सो योर होमवर्क इज लर्न वर्क पेज प्लस डी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9. आपका होमवर्क है, आपने लर्न करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आज ही अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है आपने, ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगी MS PowerPoint, ठीक है. आपने एक क्रिएट करनी है प्रेजेंटेशन, ठीक है. लाइक आपने सोलर सिस्टम पे करनी है, या सन फैक्ट्स पे करनी है, या ग्रीटिंग कार्ड्स पे करनी है, लाइक फ्लावर्स पे करनी है, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है. आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है. और आपने अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है किसी भी टॉपिक पे, अपने फेवरेट टॉपिक को सिलेक्ट करके आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, ठीक है. आपके पॉजिटिव रिस्पांस आप उसको सेंड कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप अगर आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बना ली है, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.